Okay, students, today we have to start the past paper of differentiation. Now, past papers of differentiation. The first question of from the differentiation past paper. We are doing question number 2 पैरामेट्रिक के पहले हम लोग past papers थोड़ा सा देखते हैं. So, here is question number 1. Here is the first question, which is question number 2 from your past paper file. Right now, it is May June 17. It is from May June 17 paper. Question start करते हैं जनाब. In the first part, अच्छा, the parametric equations are here. The parametric equations are here. In the first part, express dy over dx in terms of tan theta. How can we calculate this dy over dx? So, the first part is here, x equals to ln cos theta. If we differentiate the first equation, then dx over d theta will be equals to ln का डेरिवेटिव. आप लोगों को याद होना चाहिए, जो भी साथ में लिखा हुआ हो वो अपॉन में आएगा और इसका डेरिवेटिव ऊपर ऊपर क्या आ गया जनाब, साइन थीटा माइनस के साथ. तो आंसर क्या बना, माइनस tan थीटा. Now, second one, dy over d theta equals to 3 minus tan theta का डेरिवेटिव sec squared theta. Tan theta का डेरिवेटिव sec squared theta. So now dy over dx, dy वाले इक्वेशन ऊपर आएगी 3 minus sec squared theta और dx वाली अपॉन में आएगी minus tan theta. So it will be 3 minus sec squared theta किसके बराबर होता है, 1 plus tan squared theta, 1 plus tan squared theta divided by minus tan theta divided by minus tan theta. 3 minus 1, it is 2 minus tan squared theta divided by minus tan theta. अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा जनाब, tan squared theta minus 2 divided by tan theta. This is the final result. In terms of tan आ गया dy over dx. Any confusion? Any confusion? Clear? This one, log का derivative, differentiation of log. Now, in the second part, second part में जनाब क्या कहा गया, the second part is find the exact y coordinate of the point on the curve at which the gradient of the normal is equal to 1. Gradient of the normal is equal to 1. याद रखिए, ये जो dy over dx आता है, ये क्या होता है, gradient of tangent. और gradient of normal क्या हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल. अगर मैं कहूं tan square theta minus 2 divided by tan theta, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल का ग्रेडियंट अगर 1 है तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, -1. टेंजेंट का क्या हो जाएगा, -1. सो नाउ tan square theta plus tan theta minus 2 equals to 0. Find the exact y coordinate of the point on the curve at which the gradient of the normal is equal to 1. Right? अब यहां से tan की मुझे जरा दो वैल्यूज बताइएगा. यस, क्या वैल्यूज आ रही,
1n -2, 1n -2, 1n -2, ये tan की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब थीटा कैलकुलेट करते हैं। tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कहां पर होगा? हमें 0 से 90 डिग्रीज तक जाना है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आएंगे क्योंकि हमें 90 डिग्रीज तक मूव करना है। tan नेगेटिव कहां पर होता है? सेकंड में और थर्ड में, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रेंज कहां से कहां तक की है? हमारी रेंज सिर्फ 0 से 90 डिग्रीज तक। तो बेसिक एंगल कितना है हमारे पास? 45 डिग्रीज का आ गया बेसिक एंगल। 45 क्या चीज? हाँ, रेडियंस। रेडियंस क्या हो गया जनाब? पाई/4। पाई/4। हमें एग्जैक्ट y की वैल्यू चाहिए, हमें एग्जैक्ट y कोऑर्डिनेट। तो y क्या हो गया जनाब? 3 पाई/4 माइनस tan पाई/4 कितना हो गया? 1। This is the exact y coordinate when the curve, when the normal is equal to 1, when the gradient of normal is equal to 1. Any confusion? Clear? Beta, the identity of sec square theta equals to 1 plus tan square. ये आइडेंटिटी क्या? Okay, students, question number 3. Again, a question of parametric equation. It is May, June 17. In the first part, we have to calculate dy over dx. So, the first part is, can I write dx over dt as 2t and dy over dt as 4 plus 2t minus 1 नीचे, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2. So now, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए, so it will be 2t minus 1, 8t minus 4 plus 2. So finally it will be 8t minus 2 divided by 2t minus 1. What? Now, so the dy over dx will be y वाली टर्म ऊपर 8t minus 2 divided by 2t minus 1 और x वाली टर्म नीचे, मतलब डिवीजन में, so 1/2t. We can write it like, अगर ऊपर से चलें 8t minus 2 divided by 2t times 2t minus 1. अगर ऊपर से हम कॉमन लेते हैं 2, so it will be 4t minus 1 over t times 2t minus 1. This is the derivative in terms of t. This is dy over dx in terms of t. Any confusion in this? आगे, find the equation of normal to the curve at the point where t is 1. If t is 1, then x will be 1 plus 1, 2, and y will be 4, and 2 minus 1 is 1, ln 1 is 0, y is 4. This one, and what will be the gradient? Gradient of tangent is, substitute the value in dy over dx, so it will be 4 minus 1, 3, divided by 2 minus 1, 1, and t की जगह पर क्या रखा हमने? 1, 1. So the gradient of tangent is 3. We have to calculate the equation of normal. So the gradient of normal is minus 1 over 3. Now by using formula, y minus y1 equals to m x minus x1, 3 cross multiply, 3y minus 4, 3 is 12 equals to minus x plus 2, x इधर आया, x plus 3y minus 14 equals to 0. This we have to write in the answer. Right? We have to write in the form of equal to 0.
Any confusion? Is this clear? Okay, students, question number 8, again, a question of, uh, wait, it is not a question of parametric equation, wait. This one, we have to do question number 11. Now, question number 11. In the first part, we have to prove that dy over dx is equal to sec t. Now, differentiate x with respect to t. Dx over dt is t का derivative 1, cos का derivative minus sin t. Now, dy over dt, it will be 1 plus sin t, जो भी ln के साथ लिखा हुआ है अपॉन में, इसका डेरिवेटिव ऊपर cos t. तो dy over dx, dy वाला ऊपर cos t over 1 plus sin t multiply by 1 upon 1 minus sin. Now, can I write it like cos t over 1 plus sin t, 1 minus sin t is 1 minus sin square t. A plus b into a minus b. Now, cos t over 1 minus sin square t is cos square t. Cancel out. 1 upon cos is sec t. This we have to prove. Right? वन के ऊपर लगा दो स्क्वायर, क्या मसला है? Any confusion in this? Now, in the second part, hence find the x coordinate of the point on the curve at which the gradient is equal to 3. Hence find the x coordinate of the point on the curve at which the gradient is 3. Gradient is 3 means dy over dx is, because gradient of curve and gradient of tangent both are same. So dy over dx is sec t. Can I write it like 1 over cos t equals to 3 and cos t equals to 1 upon 3. Cos is positive. कहाँ पर होगा? First and last. First and last. What is the basic angle? Cos inverse of 1 upon 3 in radians. Yes. What is the basic angle in radians? One point 1.20, right? 1.20 here. So this basic angle is 1.20. So therefore, x coordinates are, एक बार हो गया प्लस में 1.20, एक बार हो गया माइनस में 1.20, because we have to go up to 90 and minus 90. So this is 1.20 up to 90 and minus 1.20 is up to minus 90. Is this clear? Complete the question. बच्चों आ गई हमारे पास प्लस माइनस 1.20. सॉरी, एक्स की वैल्यू नहीं आई है, किसकी वैल्यू आई है? टी की वैल्यू आई है. वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स. वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है जनाब. एक्स की वैल्यू निकालते हैं. सो एक्स में एक बार रखो 1.20 और आंसर मुझे बताओ 2.2. आगे क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है 2.19 और एक्स की दूसरी वैल्यू बताओ माइनस 1.20 रखकर माइनस 0.20 रेडियन. The first is 1.56 and the second one is आपने इस इक्वेशन में टी की जगह पर रखना है. इसमें रखा है ना इस इक्वेशन में.
0.837, सॉरी 3 सेगमेंट फिगर में चलना है 837. These are the two results. Is this clear? Time, thank you. Is this clear? This is minus 0.837. Okay. After that, the next parametric question is here. Question number 18. Bacho, start working on question number 18 and try to solve this. Question number 18. Okay, students, now it is May, June 15. First part. Question number 18, the first part, express d by over dx. So first we have to differentiate x, so dx over dt. क्या प्रोसेस है? पहले पावर डिफरेंशिएट होगी 4a cos क्यूब t, फिर बेस डिफरेंशिएट होगी माइनस साइन t, फिर एंगल डिफरेंशिएट होगा तो एंगल का डेरिवेटिव तो 1 ही है. सो द आंसर इज माइनस 4a साइन t cos क्यूब t. एंगल का डेरिवेटिव 1 होगा ना बेटा, तो वो तो लिखा नहीं हमने, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, पहले पावर फिर बेस फिर एंगल. हाँ एग्जैक्टली. नहीं, फंक्शन की पावर होल की पावर कंसीडर की जाती है, इंडिविजुअली एंगल की नहीं कंसीडर की जाती. ठीक हो गया. नाउ सेकंड, डी वाई ओवर डी टी. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4a cos t sin cube t directly. So dy over dx will be dy वाला ऊपर 4a cos t sin cube t divided by minus 4a sin t cos cube t. 4a कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या हो गया, tan. नहीं कैंसिल कर दो ना, साइन से ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हुआ, तो आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर टी माइनस के साथ. ये डी वाई डी एक्स आ गया. आगे क्या कहा गया, नेक्स्ट कहा गया, शो दैट द इक्वेशन of tangent to the curve at the point with parameter t is this. इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. बच्चों y माइनस y1 को मैं क्या लिखूंगा, a cos 4t इक्वल टू m कितना है, tan स्क्वायर नेगेटिव में t, x माइनस x1 कितना है जनाब, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा a sin 4t और यहाँ आएगा a cos 4t. ठीक हो गया. ना मजीद आगे चलते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनानी. कहीं इक्वेशन में tan नजर आ रहा है आप लोगों को, कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम इस tan को भी साइन ओवर कॉस में कर देते हैं. अगर इसको अपॉन कॉस में कर दिया, अगर इसको अपॉन कॉस में कर दिया तो कॉस को क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा लीजिए, y cos स्क्वायर टी माइनस a sin 4t cos स्क्वायर टी इक्वल टू माइनस x sin स्क्वायर टी प्लस a sin स्क्वायर टी
cos 4t। अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। एक्स साइन स्क्वायर टी को मैं इधर लेके आ रहा हूं, एक्स साइन स्क्वायर टी, और साथ में क्या लिखा हुआ है, वाई कॉस स्क्वायर टी। और इसको इधर लेके जा रहा हूँ ए वाले को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट साइड पर ए वाली कंडीशन मौजूद है। ए साइन 4t कॉस स्क्वायर टी प्लस ए साइन स्क्वायर टी कॉस 4t। नाउ एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस वाई कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आया, साइन स्क्वायर टी कॉमन आया, कॉस स्क्वायर टी कॉमन आया, इन द ब्रैकेट क्या बचा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी मिलकर क्या हो गए, 1, बचा क्या, एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस वाई कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर। बात समझ में आ रही, प्रूव हो गया। दिस वी हैव टू प्रूव। नाउ आफ्टर दैट इन द थर्ड पार्ट, hence show that if tangent meets the x-axis at P and y-axis at Q, then OP plus OQ equals to A। अब आप देखिए सिलसिला क्या है, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां से, P से, वाई एक्सिस को कहां से, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, समथिंग कॉमा 0 एंड 0 कॉमा समथिंग। अब सुनिए, टेंजेंट की इक्वेशन मौजूद है हमारे पास, व्हेन एक्स इज 0, व्हेन एक्स इज 0 तो क्या बचेगा, y cos स्क्वायर टी इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी। कैंसिल हो गया, y किसके बराबर हुआ, a साइन स्क्वायर टी। व्हेन y इज 0 क्या बचेगा, x साइन स्क्वायर टी इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। कैंसिल हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, a कॉस स्क्वायर टी। सुनिएगा आप जरा, p और q, p और q, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मतलब o से p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जनाब, a कॉस स्क्वायर टी, क्या हो गए, a कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि x जब y 0 रखा तो x कोऑर्डिनेट आ गया a कॉस स्क्वायर टी। ये किसके बराबर हो गया, a कॉस स्क्वायर टी, और ये y किसके बराबर हो गया जनाब, a साइन स्क्वायर टी। ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जनाब, इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन से कहां तक चले गए हम, a कॉस स्क्वायर टी तक, और यहाँ पर कहां तक चले गए, a साइन स्क्वायर टी। कहा दोनों को ऐड कर दो, तो a साइन स्क्वायर टी प्लस a कॉस स्क्वायर टी, a कॉमन साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया 1, क्या बचा, a। दिस वी हैव टू प्रूव। एनी कंफ्यूजन? Okay, students, question number 19, October November 14, part 1. First, we have to differentiate x. I'm writing x like cos power minus 3t. So dx over dt will be minus 3 नीचे आया, cos power minus 4t, cos का डेरिवेटिव minus sin t. So the final answer will be 3 sin t upon cos 4t. Now, y equals to tan cube t. So dy over dt will be
3 tan स्क्वायर टी और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर टी। ये हो गया जनाब। अब आगे वर्किंग करते हैं, dy और dx क्या हो जाएगा। dy वाला ऊपर 3 tan स्क्वायर टी sec स्क्वायर टी और dx ओवर dt क्या हो जाएगा, cos 4 t अपॉन 3 sin t। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब आप देखिए, क्या मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर को sin स्क्वायर टी अपॉन cos स्क्वायर टी। क्या मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय cos 4 t अपॉन 3 sin t। कैंसिलेशन कर रहे हैं जनाब, cos स्क्वायर cos 4 कैंसिल, sin t से पावर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। आंसर क्या आया, dy और dx इक्वल टू sin t। ट्रू। आफ्टर दैट द सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी। सो y माइनस y1 इज 1 अपॉन, सॉरी, y1 इज tan क्यूब t इक्वल टू m sin t x माइनस 1 अपॉन cos क्यूब t। सिंप्लीफाई करते हैं जनाब। हाँ, एलसीएम तो लेंगे ना। चलें, ठीक हो गया। y माइनस tan क्यूब को मैं लिख सकता हूँ क्या, sin क्यूब t ओवर cos क्यूब t इक्वल टू sin t, अंदर एलसीएम लिया, cos क्यूब t माइनस 1। यहाँ एलसीएम लिया तो cos क्यूब t y cos क्यूब t, हाँ, y cos क्यूब t माइनस sin क्यूब t अपॉन cos क्यूब t अपॉन cos क्यूब t। ऊपर here is sin t x cos क्यूब t माइनस 1 अपॉन cos क्यूब t। cos क्यूब t से cos क्यूब t कैंसिल आउट, क्या बचा, y cos क्यूब t इक्वल टू x sin t cos क्यूब t माइनस 1 प्लस sin क्यूब t। ऐसा ही है, cos क्यूब को नीचे ले आओ क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना है, सबके नीचे आ जाएगा cos क्यूब, sin t cos क्यूब t ओवर cos क्यूब t माइनस 1 अपॉन cos क्यूब t प्लस sin क्यूब t अपॉन cos क्यूब t। सबके नीचे आ गया cos क्यूब t। कैंसिलेशन, y इक्वल टू x sin t। नाउ यहां पर ये तो tan क्यूब t बनकर आ रहा है, वेयर दिस वन माइनस sin t होगा, है ना, माइनस sin t होगा, माइनस sin t, दिस इज माइनस sin t, ऐसा ही है। एंड देन sin क्यूब की तो ये वाला उठ के उधर आया ना। हाँ, अब x sin t ये तो आ गया। अगर मैं एलसीएम लेता हूं उधर cos क्यूब t से, लेकिन मैं पहले इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, sin क्यूब t पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ, अदरवाइज एलसीएम में मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइनस sin t अपॉन cos क्यूब t। मजीद चले, x sin t को तो हम छेड़ नहीं रहे क्योंकि ये तो बन गई है टर्म। cos क्यूब t ऊपर क्या हुआ sin क्यूब t
माइनस साइन टी, एक्स साइन टी, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है जनाब, साइन टी, क्या बचा साइन स्क्वायर टी -1 ओवर कॉस क्यूब टी। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, लेकिन ये तो साइन स्क्वायर टी -1 हो गया, तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी ओवर कॉस क्यूब टी, कैंसिल किया, एक्स साइन टी माइनस साइन अपॉन कॉस इज tan t. This we have to prove. Is this clear?